Hello, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today I am going to tell you about the internet and World Wide Web. It's the main topic in your chapter number second. So, what is internet and what are its services and what are the functions of internet in the present era? So, we'd like to discuss all the points related to internet. So we know that the internet has gained popularity and it's emerged as an important and efficient means of communication. So its idea of introducing the internet was to allow millions and billions of people to share information and ideas like sound, video clips using their computers across the world. Internet is nothing is a worldwide network of networked computers which are able to exchange information with each other. So internet stands for international network. What internet stands for international it's an international network which are able to allow millions and billions of people to share the information across the world. So if we are talking about the two persons, one is sitting at America and another is sitting in the Jammu and Kashmir. So they can be able to communicate with each other through this internet. And internet is a medium which allows the two people or more than two people to share any information like audio, like video, like sound, like document, whatever it is. So it began in 1950. It was introduced in 1950 by Windsurf. Windsurf is an mm, computer software engineer. Is known as the father of internet. Windsurf is known as the father of internet, and we know internet is a network of networks that consists of millions and billions of that consists millions of private and public networks, which consists of millions of private and public networks. What do you mean by network? Network is basically a group of two or more computer system linked together. So जो नेटवर्क होता है वो हाँ, मैंने आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं उसमें बहुत सारी किस्में हैं, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क हैं, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हैं और वाइड एरिया नेटवर्क हैं. जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं दैट आर लिमिटेड to the local areas, like in our village, in our corporations, like to our societies, to our government offices, to our organizations. कि हमारे पास एक कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, लाइक हमारा स्कूल है, हम उसमें से हमने एक नेटवर्क बना के रखा है. वहाँ पे वो जो स्कूल हैं that network is framed in within the vicinity of the or within the vicinity of our school. So we are connected to we are connected to the network. All the students of the school are connected to the network. तो ये जो नेटवर्क हैं जो हमारे स्कूल में हैं दैट्स लिमिटेड टू आवर स्कूल. एंड आपने देखा होगा कि बैंक जो हमारे पास बैंक्स हैं, जैंड के बैंक, स्टेट बैंक, तो उनमें से उनको भी अपना नेटवर्क होता है. तो अलग मतलब यहाँ पे जो बैंक हैं, लाइक हमारे पास जैंड के बैंक आउरा है, तो उसमें जो नेटवर्क हैं दैट्स विद इन द पर्टिकुलर बैंक, विद इन द आउरा ब्रांच. तो इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में या कॉरपोरेशंस में या बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस में होता है अपना नेटवर्क दैट वर्क्स विद इन द कंपनी और विद इन दैट पर्टिकुलर ऑफिस. तो इसी तरह हमारे पास होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क लाइक हमारे पास एक नेटवर्क है दैट वर्क्स विद इन ए पर्टिकुलर सिटी. लाइक हमारे पास केबल है, क्या है, केबल है, या हमारे पास टेलीफोन BSNL है, BSNL.
तो ये जो BSNL नेटवर्क हैं, तो दैट वर्क्स विद इन ए पर्टिकुलर रेंज। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई BSNL MTNL कनेक्शन है, तो ये वर्क करता है कहाँ पे, हमारे सिटी में, लाइक श्रीनगर और इसके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में, कश्मीर में और इसके 10 डिस्ट्रिक्स में, मतलब अक्रॉस द वैली इसका जो फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन करते हैं within within Jammu and Kashmir like that। तो ये जो MTNL है या BSNL कनेक्शन है हमारे पास, वी कैन से दिस इज़ a टाइप ऑफ मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। तो इसी तरह हमारे पास एक और होता है, दैट्स वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, दैट इज द group of local area networks or a group of metropolitan networks that works across the world। मतलब we can share any information across the world with each other। तो हाँ, लाइक हमारे पास जो इंटरनेट है, इट्स ए कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो इंटरनेट है, दैट्स फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि इसका जो नाम है वो है वाइड, इट मीन्स दैट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वी कैन शेयर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और videos and video clips, and we can easily share within each other with one another। So history of internet, would like to see about the history of internet। And in 1969, the University of California at Los Angeles and the University of Utah were connected at the beginning of the ARPANET। what's ARPANET? तो ये जो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उता, ये दो यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड हो गई आपस में। तो इनमें से एक नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो ये क्या था, इट वाज ARPANET। व्हाट इज़ ARPANET? इट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। It was using 50 kilobit circuits। 50 kilobit circuits। इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो ये है फर्स्ट ऑपरेशनल जो कि बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उत्ता ने, कहाँ पे, लॉस एंजल्स में। तो इसका जो एट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ARPANET, जो कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है। इट मीन्स दैट इट्स द फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। और इसका जो गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इट वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड US डिफेंस। और ये US डिफेंस पर्पज़ के लिए था, कि ये जो US डिफेंस था, डिफेंस सिस्टम आर्मी थी US की, तो उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था एक सिस्टम, एक कनेक्शन, एक नेटवर्क जिसका नाम था ARPANET। तो और बहुत सारी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जोड़ने में, मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक कनेक्शन बनाने में जो काम किया US साइंटिस्टों ने, वो यही था कि बहुत सारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस को आपस में जोड़ना है। क्योंकि we should be able to connect with each other, with one another, with one university to another university। तो एक वहाँ पे उस ज़माने में एक सोच था, मतलब एक इन साइंटिस्टों की। तो उसके बाद इन mid-80s अनदर फेडरल एजेंसी, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, और इन्होंने क्या किया, हाई कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क बनाया जिसका नाम है NSF नेट, जो कि विच वाज मोर कैपेबल दैन ARPANET। जो ARPANET था वो थोड़ा सा उसकी जो स्पीड वो कम ही थी और वो डेटा कम यूज़ करता था। तो इसके बाद जो
एन एस एफ नेट था वो दैट वाज मोर कैपेबल, दैट वाज able to connect more quietly and than ARPANET. और इसका जो ड्रॉबैक था एन एस एफ नेट का was that तो इट अलाउड ओनली द एकेडमिक रिसर्च ऑन द नेटवर्क, कि एकेडमिक्स पे हम काम करते थे उस टाइम, कि जो कुछ भी एन एस एफ नेट था, एन एस एफ नेट वॉज मेंट फॉर टू वर्क ऑन एकेडमिक रिसर्च एंड इट वाज नॉट मतलब कि इसमें हम यूएस मतलब ये डिफेंस के लिए नहीं था कि या किसी भी किस्म की प्राइवेट बिजनेस के लिए नहीं थे ये जो एन एस एफ नेट था हमारे पास। सो कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे इस टाइम की या पीपल, they started working to build their own networks which were later interconnected with ARPANET and NSFNet to form the इंटरनेट। तो कि जो मेनली जो हमारे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे या लोग थे उनके लिए नहीं थे ये पर्टिकुलर ये एकेडमिक रिसर्च के लिए था। कौन ये है, ये जो एन एस एफ नेट था हमारे पास। तो उसके उसके बाद जो हमारे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो आपस में जुड़ना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने एक किस्म के मतलब इस पर काम किया। तो उन्होंने अपने जो ओन नेटवर्क्स बनाए, कि एक कंपनी ने नेटवर्क बनाया, दूसरे कंपनी ने नेटवर्क बनाए। तो एंड लेटर ऑन दे mingled with each other, they interconnected all the networks which are now as called internet। जो अर्पा नेट, एन एस एफ नेट, प्राइवेट नेट्स जो कुछ भी बनाए तो उनको जो इकट्ठा किए लोगों ने, तो उसका फिर नाम दिया इंटरनेट। और लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट ने क्या क्या किया आज के हमारे जो मॉडर्न दौर है, हमारा आज का जो दौर है, इसमें इंटरनेट का क्या रोल रहा है। यूजुअली हम देखते हैं कि इट्स यूज्ड टू इजीली कम्युनिकेट विद अदर पीपल विद वन अनदर। तो कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम sender to receiver, and we can send message quickly, we can be easily communicated from one country to another country। तो हम एक सेंड करते हैं एक व्हाट्सएप में एक मेल, सॉरी एक मैसेज, तो इजीली वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द पर्सन रिजाइडिंग इन अमेरिका और एनी अदर कंट्री। तो इसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है क्या है, ग्लोबल रीच enables one to connect anyone on the internet। यही कि one can easily able to send a message to another person and we can publish documents on the internet and it saves a lot of paper। तो हम क्या करते हैं कि आज के ज़माने में हम कुछ भी लिख सकते हैं घर में, मैगज़ीन या किताब, या फिर हमें कुछ छापने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट वांट टू प्रिंट आवर वर्क ऑन द पेपर। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम, तो इसलिए उस पर राइट कर सकते हैं और वी कैन बी एबल टू write it on our web page on our websites easily। so उसके बाद मुख्तलिफ lot of people can view our magazines, view our newspapers। तो they can easily see our posts like that, as we are posting some material to our Facebook पेज, कि हम कुछ भी लिखते हैं या इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हैं या कुछ भी हमारा अपना कुछ भी हमारा अपना मतलब ओपिनियन होती हैं, तो इसी को हम मतलब पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो इजीली बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको देख सकते हैं और अपनी जो राय है वो वहाँ पे इजहार कर सकते हैं इजीली। तो इससे क्या होता है कि पुराने ज़माने में हमने अगर हमारी बात होगी तो हमने इसको मैगज़ीन पे छपाना था या आर्टिकल लिखना था पहले, फिर क्या होता था, तो उसके बाद
जब कभी भी हम मैगज़ीन लाएंगे घर पर या न्यूज़पेपर, तो हम उस वक्त देख सकते हैं। आज के ज़माने में हमने यहाँ पे प्रिंट किया, हमने यहाँ पे छापा, हमने यहाँ पे टाइप किया, तो इजीली इट विल व्यू टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद है वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। तो इसमें बहुत सारा रिसोर्स भी हैं कंपनीज के लिए कि वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए भी मतलब बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि हम अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक ग्रुप्स हैं या इंस्टाग्राम पे हम अपने मतलब कुछ भी, लाइक हमारे पास एक क्लोथिंग एक्सेसरीज है या लाइक हमारे पास कुछ भी कॉस्मेटिक हैं, तो हम इजीली एडवर्टाइजमेंट के लिए हम बहुत सारे पेज रखते हैं, तो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोग कि हम अपने कस्टमर्स बना सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। तो और एक बात, ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस रिसर्च टाइम्स, और वी कैन एक्सेस तो इंफॉर्मेशन मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत होगी हमें, मतलब हम अपना जो टाइम है वो बचा सकता है। कैसे कि हम इजीली टाइप कर सकते हैं। इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है, तो टॉपिक के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है, तो आप चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है ये मेरा क्लियर होना चाहिए, तो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब में जाके आपने टाइप किया कुछ प्रोबेबिलिटी या मतलब कि इंटरनेट को टाइप किया, तो वहाँ पे बहुत सारे नोट्स निकलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस निकलेंगे। तो गूगल में आपने टाइप किया इंटरनेट, तो वो सब कुछ दिखाएगा। विकीपीडिया में उसकी नॉलेज सब कुछ जानकारी आपको देंगे। विकीपीडिया या गूगल या मतलब इंटरनेट में किसी भी ब्राउज़र में आप टाइप कर लीजिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट। तो इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स एन abbreviated as WWW। और जो आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम वेबसाइट टाइप करते हैं किसी भी ब्राउज़र में, तो हम यही लिखते हैं पहले WWW, फिर लिखते हैं डॉट, फिर लिखते हैं ग्रेटर कश्मीर कुछ भी वेदर, फिर लिखते हैं मतलब क्रिकबाज या ग्रेटर कश्मीर या कुछ भी नाम होगा। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो वेबसाइट है उसका कोई भी नाम हो सकता है, या ममता पब्लिकेशंस या कुछ भी, लाइक फिर लिखते हैं डॉट कॉम या डॉट इन। कॉम होता है कॉमर्स के लिए, इन होता है इंडियन के लिए, और पी के होता है पाकिस्तान के लिए, और ऐसे होते हैं बहुत सारे डिफरेंट मतलब क्या कुछ डोमेन होगा, हमारा डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर वेबसाइट। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इट्स अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। तो ये क्या है जो हमारे पास WWW है, इट्स एन जिस ये जो WWW है इट्स एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क है ये फॉर एक्सेसिंग लिंक डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे पास बहुत सारे वेब पेज हैं, लाइक हमारे पास कोई वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चेक किया होगा ग्रेटर कश्मीर की वेबसाइट, तो ग्रेटर कश्मीर की वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज हैं। उनको इंटरकनेक्ट या इनको लिंक करने के लिए हमने एक तैयार किया हुआ है, एक मतलब लिंक किए हैं बहुत सारे वेब पेज जो कि एक विच कंप्राइज ऑफ द ग्रेटर कश्मीर वेबसाइट। तो उसी को जो ये लिंक्ड जो हैं दैट डॉक्यूमेंट्स दे आर कॉल्ड एज वेब पेज। कि ये जो वेब पेज हैं बहुत सारे वेब पेज दैट आर स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब हैं इससे ये यही है कि जो सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे दैट्स विद इन द इंटरनेट दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट।
दैट नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। तो कैसे कि हम विद वेब ब्राउज़र वन कैन व्यू वेब पेज दैट में कंटेंट टेक्स्ट इमेजेस। कोई भी वेबसाइट आप टाइप करो अपने वेब ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे निकलेंगे आपको हज़ारों टेक्स्ट या इमेज या कुछ भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट, इमेज, मल्टीमीडिया एंड आप देख सकते हैं उनके बीच में। तो ये है, दैट्स ऑल अबाउट www। तो इट्स एक्चुअली सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं ये, या प्रोटोकॉल्स की सेट ऑफ रूल्स हैं विच अलो द टेक्स्ट कि आपने मतलब टेक्स्ट देखना है या इमेज या एनिमेशंस या साउंड्स या वीडियोस to be stored, accessed and linked together in form of websites। जो कोई भी वेबसाइट में बहुत सारे लिंक्ड पेजेस होते हैं, दैट आर नोन एज योर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इट वाज दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड एट CERN एंड द यूरोप, ये है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन 1989। WWW प्रोजेक्ट कब डेवलप हो गया है? 1989, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। एंड इट हैज़ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ, मतलब ये यूज़र फ्रेंडली होता है। टाइप कंप्यूटर यूज़र जो है उसने टाइप किया तो वहाँ से निकल आते हैं कुछ भी, वट एवर दे वांट, मतलब लाइक टेक्स्ट होगा या डॉक्यूमेंट होगा, एनिमेशन होगा, यही है। एंड इट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्विस। क्या होता है क्लाइंट सर्वर सर्विस? एक क्लाइंट सर्वर, मतलब कि इन दिस एक क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर होता है, इट्स अ फ्रेमवर्क लाइक कि यहाँ से जो यूज़र होता है उसको हम नाम देते हैं क्लाइंट। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्लाइंट, यूज़र को हम कहते हैं क्लाइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर पर बैठे हुए होते हैं तो आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके उस टाइम आपको हम नाम देंगे क्लाइंट। तो आप क्लाइंट हैं तो आप इंटरनेट के साथ काम करते होंगे। तो एट दैट वेरी टाइम यू आर एबल टू एक्सेस द सर्विस फ्रॉम ए सर्वर। कोई भी काम करते हैं आप इंटरनेट पे तो आपको क्या नाम देते हैं? क्लाइंट। तो आप क्लाइंट हैं, आप यूज़र हैं। इसी तरह जो इंटरनेट पे जो काम करता है तो दैट्स नोन एज क्लाइंट। और जो सर्वर होता है हमारे पास, सर्वर दैट्स मैन सर्वर इज अवर इंटरनेट। तो हमने कोई भी इंफॉर्मेशन फैच की इंटरनेट से तो दैट्स मतलब कि दैट्स अवर सर्विस। तो ये जो सर्वर हैं यूजिंग ए ब्राउज़र फ्रॉम एस, जो जो हमारे पास सर्वर हैं, लाइक हमारे पास इंटरनेट है और इंटरनेट को हमने कनेक्ट किया है फ़ोन थ्रू या कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। तो फिर हमने टाइप किया ब्राउज़र में कुछ भी, तो एट दैट वेरी मोमेंट जो हमारे पास सर्वर हैं वो है इंटरनेट, और जो हमारे पास क्लाइंट है वो है हम खुद। तो ये जो सर्विसेज हैं दे आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैनी लोकेशंस कॉल्ड साइट्स और वेबसाइट। जो हमारे पास बहुत सारे साइट्स हैं या वेबसाइट्स हैं, दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैनी लोकेशंस। कोई भी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपने आपने आप कुछ भी टाइप करोगे, वेदर वट एवर यू वांट। फॉर एग्जांपल यही लेंगे हम स्टडी, मतलब कि कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने टाइप किया तो वहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स निकलेंगे। लॉट ऑफ साइट्स, हंड्रेड्स ऑफ साइट्स आर अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपने कोई भी क्वेश्चन दिया वहाँ पे, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस सर्च किया गूगल में, तो वहाँ पे हज़ारों के हज़ारों निकलेंगे वहाँ पे वेबसाइट्स या साइट्स। तो वो दे विल शो यू व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो एक वेबसाइट निकलेंगे, एक आंसर देगा, मतलब दूसरी वेबसाइट वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो अलग सा उनका आंसर होगा। तो इसी तरह हज़ारों के हज़ारों होंगे। तो ये जो वेब पेज हैं, ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, या इंटरकनेक्टेड भी होंगे ये। फॉर एग्जांपल एक वेब पेज निकलेगा आपको एक साइट में, तो वही एक वेब पेज निकलेगा दूसरी साइट में। तो ये जो पेज हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। यही होते हैं हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। तो हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो वेब है, वेब कंसिस्ट्स ऑफ वास्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये है आपके लिए है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम नाम देते हैं वेब पेज।
वेब पेज, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं वेब थ्रू इंटरनेट, तो वो एक पेज होता है। पेज को पेज को हम इकट्ठे करते हैं तो फिर हम वेबसाइट्स बनाते हैं। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हमारे इंटरनेट पे, तो इसी उसी के थ्रू हम फैच करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज वेब पेज वेब रिजाइड ऑन डिफरेंट साइट्स और मशीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो वेब पेज हैं दे रिजाइड ऑन डिफरेंट साइट्स, मुख्तलिफ साइट्स पे होते हैं ये वाले वेब पेज। तो जो एक वेब पेज होता है दैट कैन कंटेन लिंक टू अदर पेज एनी वेयर इन द वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फेसबुक ऐप यूज़ करते हो तो फेसबुक में आपने ऊपर से देखा होगा कि हमारे पास होता है होम होता है, या प्रोफाइल होता है एक ऑप्शन, और फिर होता है फ्रेंड्स, या फिर होता है चैट, फिर होता है वगैरह वगैरह कुछ मुख्तलिफ से होते हैं। तो आप होम को जब हम प्रेस करते हैं तो आप होम को टाइप करते हो, टच करते हो, तो होम के बाद आपको एक और पेज निकलता है होम, या प्रोफाइल पे आप टच मारते हो, आप टैप करते हो, तो उसके बाद आपको निकल आता है वहाँ की प्रोफाइल। तो ये जो यूज़र हैं उसकी क्या है प्रोफाइल है, इन्फॉर्मेशन निकल के आती हैं। तो एड्रेस क्या है उसका, या नाम क्या है उसका, या ईमेल आईडी क्या है उसकी, तो बहुत सारा निकलता है। वही उसे हम कहते हैं कि जो कुछ भी जिस किसी भी वर्ड या किसी भी फिगर को हम टच करके फिर डायरेक्टली हमें कोई और पेज आता है वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। या होगा वो टेक्स्ट या इमेज विच अलाउज अस टू लिंक टू अनदर वेब पेज दैट्स कॉल्ड एज हाइपरलिंक। क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, लाइक जो ब्लू ब्लू हाईलाइट हाईलाइटेड होते हैं, कि उस हमें ये पता होता है कि अगर हम इसको टच करेंगे वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने ग्रेटर कश्मीर का जो पेज है, ग्रेटर कश्मीर की जो वेबसाइट है, उसमें से आपने कोई आर्टिकल देखा, तो आर्टिकल के बीच में एक लाइन आती है, वो ब्लू में से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो होता है हाईलाइट होता है, वो हाईलाइट करके लिखा होता है कुछ कुछ बिहाफ ऑफ द फॉलोइंग, या यूज़र, या कोई भी नाम। तो वहाँ पे आएगा आपको बीच में महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ब्लू से हाईलाइट होता है। तो अब महात्मा गांधी को टच करके फिर महात्मा गांधी का मतलब पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी निकल के आती है। तो इसका मतलब है कि जो ये महात्मा गांधी हैं, ये जो एक पेज में आता है, तो ये जो महात्मा गांधी हैं इट्स एन हाइपर लिंक, कि इसने हमने इसे इसको टच करने से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, या हम इसको टच करने के बाद हम एक दूसरे पेज में आ गए। वो कौन सा पेज है हमारे पास? वो भी एक वेब पेज है। ये एक पेज था होम पेज, तो हम दूसरे पेज में आ गए। तो इसको जोड़ने में जो हमें काम करते हैं, जो हमें मदद देती हैं, वो है हमारा हाइपर लिंक। तो दिस काइंड ऑफ लिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है? ये यहाँ है टेक्स्ट है, या पिक्चर में, पिक्चर को आपने टच किया तो आप चले जाते हैं किसी और दुनिया में। यहाँ है साउंड को आप टच करके आपको फिर बहुत सारे साउंड्स निकलते हैं। तो या मूवी क्लिप, तो मूवी क्लिप होता है, कोई फेसबुक पे आपने क्लिप को टच किया, तो आपको ये नहीं पता होता है, तो आपको पता होता है कि ये प्ले होगा। तो प्ले नहीं होता है ये मूवी, जो कोई भी क्लिप होती है आपकी वीडियो क्लिप्स, तो क्लिप के बाद आता है एक और पेज, तो वहाँ पे बहुत सारे एड्रेसेस निकलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल के आती हैं इस वीडियो क्लिप के रिलेटेड। तो यही होता है हमारे हाइपर लिंक। और इसके बाद है, अगर कोई टेक्स्ट है हमारे पास विच पॉइंट्स टू अनदर वेब पेज दैट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। इन सब को हम कहते हैं, इकट्ठे कहते हैं हाइपर लिंक। तो अगर हम टेक्स्ट की बात करेंगे, टेक्स्ट को आपने टच करके फिर एक वेब पेज निकला, तो उसे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट। तो ये जो नॉर्मल टेक्स्ट हैं हमारे पास, या जो ये हम हाइपर टेक्स्ट हैं, इनमें इससे क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि वेन एवर आप कभी भी पॉइंटर उसके ऊपर लाते हैं,
कि नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आपने पॉइंटर लाया तो आपने टच किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आपने हाइपर टेक्स्ट के ऊपर पॉइंटर लाया तो आपने टच किया तो वहाँ पे एक और दुनिया आ गई। तो यही होता है कि ये जो सच टेक्स्ट किसी वक्त समटाइम्स ये होता है, अंडरलाइन भी होता है, या दैट्स कि जो मैंने बताया वो है ब्लू इन कलर। जो एक और चीज़ हमारे पास हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया जो है दैट्स एन इन्हेंस्ड फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक। यही कि हाइपरलिंक को हाइपरलिंक कभी भी साउंड टेक्स्ट वीडियो को हमने टच करके एक और बहुत सारे पेज निकलते हैं। जो हाइपर मीडिया है वो है इन्हेंस्ड फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक। कैसे? ये नॉट ओनली लिंक्स टू द अदर पेजेस बट इट अदर सेक्शंस विद इन द सेम पेज। ये हम इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक और इट कैन आल्सो लिंक विद वेरियस मीडियम्स लाइक साउंड या एनिमेशन या मूवी क्लिप। फॉर एग्जांपल हाइपर मीडिया, तो हमने किसी भी टेक्स्ट को टच करके फिर हमारे बहुत सारे साउंड्स निकल के आते हैं, या एनिमेशंस या मूवी क्लिप्स। तो एट दैट वेरी मोमेंट we can say it's hyper media। तो जो हाइपर लिंक होता है एट द वेरी टाइम, एट द वेरी मोमेंट, टेक्स्ट को टैप करने में या टैप करने में, या वीडियोस या साउंड या ऑडियो को टैप करने में एक ही चीज़ निकल के आती है। जो हाइपर मीडिया है इट्स ए कम्बिनेशन, इट्स एन एनहेंस्ड फॉर्म ऑफ हाइपर लिंक। जो हाइपर मीडिया होता है इट्स ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट मीडिया, मतलब साउंड्स लाइक ग्राफिक्स लाइक एनिमेशन एंड टेक्स्ट इन सिंगल फाइल। एक सिंगल फाइल में आपको निकल के आती हैं ये बहुत सारी चीज़ें। एंड ये जो हाइपर लिंक्स हैं दे आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। जो हाइपर लिंक को आप एक लैंग्वेज में एक जो जो हाइपर लिंक्स हैं दे आर क्रिएटेड विद विच लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं जिसमें हम हाइपर लिंक्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। आपने नाम सुना ही होगा HTML, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हम बनाते हैं बहुत सारे हाइपर लिंक्स। मतलब ये जो वेब पेज हैं, इन ऑर्डर टू एक्सेस दीज वेब पेज ऑन डिफरेंट साइट्स, कि हमने बहुत सारे साइट्स पे इनको क्रिएट करने हैं और इनको मॉडिफाई करने हैं, इनको एडिट करने हैं और इनको व्यू करने हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे। तो इनका काम यही होता है कि वन पेज टू अनदर, मतलब एक इंफॉर्मेशन टू दूसरे इंफॉर्मेशन को लेके हमने जाना है, ये हाइपर लिंक। तो ये इन सब पेज का एक एक स्पेशल एड्रेस होता है। क्या होता है? स्पेशल एड्रेस होता है विच आर नोन एज URL। क्या होता है? URL। आप टाइप कर सकते हैं URL क्या होता है? स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेब पेज आर व्यूड विद ए प्रोग्राम। जो वेब पेज हैं वो कैसे हम व्यू कर सकते हैं? वेब पेज आर व्यूड विद ए प्रोग्राम दैट्स नोन एज यूर ब्राउज़र। लाइक क्रोम है आपके पास, फायरफॉक्स है, या मोजिला है, या ओपेरा मिनी है इन स्मार्टफोन्स। ये होते हैं कुछ ब्राउज़र्स। इसके बाद हैं और ये जो वेब ब्राउज़र है इट्स अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स या वेब पेज एंड इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। एंड ये है it acts as an interface between the user and the world wide web, and user can see different text, different video, different sounds by using a web browser। एंड ये जो वेब सर्वर होता है इज ए कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल द वेबसाइट्स एंड द रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। जो यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब में हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, या हमारे पास
फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स है, या हमारे पास गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम है एक पर क्या हुआ है, एक वेब ब्राउज़र है हमारे पास। तो हम कुछ भी व्यू कर सकते हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब हमने कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं गूगल में, गूगल क्रोम में, तो वहाँ पे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। तो इट मीन्स दैट ये जो गूगल क्रोम में, इट कंसिस्ट्स ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेज विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये जो इंटरनेट कनेक्टेड हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग से वेबसाइट्स हैं हमारे पास। तो जो वेबसाइट्स में क्या 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 खुसूसियत होते हैं, उसमें इस इट कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन and which are used to view which are used to view to see the related files। और क्या क्या एडवांटेज हैं एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। एक तो है हमारे पास नंबर फर्स्ट वन इज डेटा शेयरिंग। क्या है? डेटा शेयरिंग। तो हम ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो टेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, हाउ वी आर गोइंग टू शेयर दिस टाइप ऑफ डेटा। तो इट यूज़ नेटवर्किंग। क्या है? It's the most important use of networking is to allow the sharing of data, how data is to be shared between the two persons। तो यूज़र कैन सेंड, यूज़र एक यूज़र जो है, ही कैन सेंड टेक्स्ट, ही कैन सेंड फाइल्स, ही कैन सेंड स्प्रेडशीट्स। ये जो एक्सेल शीट्स हैं हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यही होते हैं हमारी स्प्रेडशीट्स। और डॉक्यूमेंट्स, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होते हैं, जो हम फाइल्स बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो हैं डॉक्यूमेंट्स। और प्रेजेंटेशंस हैं, प्रेजेंटेशंस एंड ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स एक्स्ट्रा टू अदर यूज़र्स। डेटा शेयरिंग इसका मतलब है कि कोई भी हम शेयर करते हैं डेटा, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट्स या प्रेजेंटेशंस या ऑडियो और वीडियो फाइल्स। तो ये है हमारे पास डेटा शेयरिंग। जैसे आप देखते आ रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स में हमारे पास एक डेटा शेयरिंग का ऐप है, वो है शेयर इट है या है शेयर मी नॉर्मल फ़ोन्स में। तो यहाँ हम शेयर कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ। दैट्स मीन्स ऑफ शेयरिंग बिटवीन द टू, कम्युनिकेटिंग बिटवीन द टू डिवाइसेस। तो इसी तरह हमारे पास है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर को हम कैसे शेयर करते हैं? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी विद आवर नेकेड आइज और विच वी कैन टच विद आवर नेकेड आइज। तो हमारे पास बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? लाइक स्क्रीन है हमारे पास, प्रिंटर है, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, और बहुत सारे हैं कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स दैट आर नोन एज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं कैसे? कि एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर ऑफिस इन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे एक सिस्टम है, एक बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो वहाँ पे एक ही प्रिंटर है या एक ही स्कैनर है वहाँ पे। तो एक स्कैनर जो है वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कंप्यूटर सिस्टम है अलग अलग 10 रूम्स में। तो हम वो एक प्रिंटर या एक स्कैनर 10 कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि उसको हम जोड़ सकते हैं थ्रू वायर टू द 10 कंप्यूटर सिस्टम्स, टू द 10 कंप्यूटर सिस्टम्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रूम फर्स्ट हैं अप टू रूम 10। तो रूम फर्स्ट में एक सिस्टम है, रूम सेकंड में दूसरा सिस्टम है, रूम थर्ड में तीसरा सिस्टम है, इसी तरह रूम 10 में 10th सिस्टम है। तो रूम एक ने कुछ प्रिंट दिया, तो वो रूम 11 में हमारा जो प्रिंटर है, रूम 11 ने इसने कमांड दी, रूम 1 ने एक कमांड दी, तो वहाँ पे प्रिंट हो गया 11 में, रूम 11 में जहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है। और रूम थर्ड ने प्रिंट दिया, तो इसने कुछ अलग सा प्रिंट दिया होगा, तो रूम 11 में जो प्रिंटर हैं वहाँ से प्रिंट हो गया। तो इसी तरह रूम 7 में जो कंप्यूटर सिस्टम है, तो वहाँ पे एक यूज़र ने प्रिंट दिया, तो रूम 11 में जो प्रिंटर है वहाँ पे
प्रिंट हो गया। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर हैं वो भी हम जोड़ सकते हैं आपस में, वो भी हम शेयर कर सकते हैं, वो भी हम शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको ये एग्जांपल बता दी। तो उसके बाद है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो आप यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। कैसे? हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, वेदर इट्स डेटा, मोबाइल डेटा, और इट्स थ्रू ब्रॉडबैंड। तो ये जो ब्रॉडबैंड है ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। क्या है ये? एक इंटरनेट कनेक्शन का एक किस्म है या टाइप है, गिवन बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो एक आपको कनेक्शन मिल जाता है आपको, कि उसमें जो बैंड विड्थ है वो है इट्स वाइड बैंड विड्थ डाटा डेटा ट्रांसमिशन, जो मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रैफिक टाइप्स। ये जो मीडियम है, आपको किस मीडियम के थ्रू आप ब्रॉडबैंड लगा सकते हैं? इट्स थ्रू कोएक्शियल केबल, या ऑप्टिकल फाइबर, या ट्विस्टेड पियर केबल। तो ये है मीडियम, इनके लिए यही मीडियम रहता है किसको, ब्रॉडबैंड को कनेक्ट करने में। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल डेटा होता है ये है वायरलेस, ये होता है वायरलेस। इसमें हम कनेक्शन नहीं, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है लेकिन वायरलेस है। जो ब्रॉडबैंड होता है वो है वायर्ड, क्योंकि जो ब्रॉडबैंड है उसमें बहुत स्पीड है। क्यों? उसमें स्पीड लॉस नहीं होती है, क्योंकि ये जो मोबाइल डेटा है, वेदर इट्स फोर, ये है 4G, तो इसमें डेटा लॉस होते हैं। इसीलिए इसी तरह हम देखते हैं कि जो स्पीड बीच बीच में नहीं होती है, या स्पीड पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक उतना मतलब ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आती हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि एक जगह एक अच्छी स्पीड आती है, और दूसरी जगह मतलब स्पीड उतनी अच्छी नहीं आती है। अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करेंगे तो इसमें कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं ये ब्रॉडबैंड। तो दैट इट वाज ऑल अबाउट इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो इस तरह यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस के कौन कौन से हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। यही है कि वेब ब्राउज़र्स, हम ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग, ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं, या ईमेल क्लाइंट्स, या फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल का इस्तेमाल करते हैं हम, या विंडोज़ का अलग अलग ईमेल मैसेंजर्स होते हैं या हमारे पास, या चैट एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, या कोई भी बहुत सारे चैट एप्लीकेशंस होते हैं, या ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग। आप देख सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, या बहुत सारे लॉट ऑफ applications are available on internet where you can connect with another people। तो आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉल, एंड फेसबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हियर, और व्हाट्सएप। तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या जो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हमारे पास। एंड ये हैं इट्स वन ऑफ द एडवांटेज जो कि विच आर एसोसिएटेड विद द नेटवर्किंग। ये थे कुछ एडवांटेजेस विच आर एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। तो आज आपने देखा कि इंटरनेट हमने पढ़ा और वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे।